دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ نہ کجرے کی دھار، نہ موتیوں کے ہار، نہ کوئی کیا سنگار، پھر بھی کتنی سندر ہو تم کتنی سندر ہو۔ باری موٹا سا پائپ تھامے پودوں کو پانی دیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے چپکے سے آ کر حوض کی منڈیر پر بیٹھ گئی اور اس کا خوبصورت گیت دلکش آواز میں سن رہی تھی۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، وہ واقعی اتنی حسین ہے کہ انہیں کسی سنگار کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کتاب تھوڑی کے نیچے ٹکا کر بے تاثر سے انداز میں گرا لگائی۔ باری بری طرح چونک کر پلٹا۔ سرخ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس سبزے کے درمیان بیٹھی وہ ماحول میں عجیب سی دلکشی کا باعث بن رہی تھی۔ باری نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ البتہ گیت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سالگرہ والے روز تو بہت ہی غضب ڈھا رہی تھیں۔ روشنی نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا۔ اس مرتبہ بھی وہ بالکل خاموش تھا۔ مگر تم تو بہت مصروف تھے، تم نے شاید دیکھا ہی نہ ہو۔ حسن ہے جیسے تصویر ہو، وہ تو دھلے منہ سے ہوش اڑا سکتی ہیں۔ اس نے پھر کہا۔ باری ہنوز خاموش تھا۔ شاعر نے غالباً انہی کے لیے کہا ہے کہ تم جس رنگ کے کپڑے پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس حرف پہ انگلی رکھو وہ روشن ہو جائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا روشنی پھوٹتی ہے ان سے؟ وہ پھر ہنس رہی تھی۔ تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، وہ چیز ہی ایسی ہیں۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ باری پائپ کھینچتا ہوا دوسری سمت چلا گیا۔ ویسے آج کل ملاقات کی کیا سبیل بنتی ہے؟ حویلی سے باہر تو خیر تمہاری موج تھی، وہ کھلکھلا رہی تھی۔ ویسے یہ زخم لگا کیسے تھا؟ کیا بچپن میں گھوڑے سے گر گئے تھے؟ مگر یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ مارو تو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ اس طرح زخم لگنا تھا تو ہاتھ یا ٹانگ پر لگتا۔ ہو سکتا ہے بچپن میں تم لڑکوں سے بہت لڑتے رہے ہو، کیونکہ تم میں اسٹیمنا ہے ہی نہیں، ہے نا؟ وہ بے تکان بولے جا رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، پہل کس نے کی تھی؟ باری نے اگلی کیاری کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ویسے امکان ہے وہی مر مٹی ہوں گی پہلے، یہ گیت گاتے ہوئے، پیار کے بدلے ہمیں پیار دیں گے، اور کیا ہمیں سرکار دیں گے۔ اس پہ یہ ناز توبہ، اس پہ یہ انداز توبہ، آپ تو جیتے جی ہی مار دیں گے۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے اسے زج کر کے دلی مسرت ہو رہی ہو۔ ہائے روشی، تم یہاں ہو پتہ نہیں چلتا۔ ایک تو تمہارا کلو تمہیں ڈھونڈ رہی، بابا صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ روبی اسے دیکھ کر شروع ہو گئی۔ اس نے منہ بنا کر روبی کی طرف دیکھا۔ البتہ باری نے اطمینان بھری سانس لی اور اپنے پیروں پر پانی ڈالنے لگا۔ روشی برا سا منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ روبی اس سے پہلے اندر غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بے دلی سے بابا صاحب کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، بابا صاحب کی پررعب آواز ابھری۔ وہ اندر گئی۔ بابا صاحب نظر کی اینک لگائے پتہ نہیں کون سے کھاتے چیک کر رہے تھے۔ انہوں نے اینک اتار کر اوپر سے جھانک کر آنے والی کو دیکھا۔ آؤ روشی، بہت دیر سے تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہاں تھیں؟ کیا سو رہی تھیں؟ انہوں نے اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور کتابیں دیکھنے شروع کر دیں۔ نہیں، میں کتابیں لیے باغ میں پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں جھوٹ بولتے ہوئے انسان کی آواز کا دم خم کہاں چلا جاتا ہے۔ اسے اپنی کمزوری پر خود ہی کوفت ہوئی۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ صبح کو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، انسان بھولتا نہیں۔ تمہارے باپ کو تو بہت شوق ہے کہ اس کے بچے ڈگریوں کے ڈھیر لگا دیں۔ آج ایسا کرو، تم ناشتہ ہمارے ساتھ کرو۔ روشی نے بڑی حیرانی سے ان کی سمت دیکھا۔ آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا ہے بابا صاحب؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ لامحالہ اس کا ذہن اپنی شادی کے موضوع کی طرف تھا۔ نہیں بھائی، کام کرنے کو تھوڑے لوگ ہیں۔ تم سے آج تک کیا کوئی کام کروایا ہے کسی نے؟ وہ مسکرائے۔ روشی مزید حیران ہوئی۔ بھائی ہمیں یہ بتاؤ پہلے کہ تمہیں اپنے باپ سے کتنا پیار ہے؟ وہ بیڈ کی پشت سے ٹک کر سکون سے بیٹھ گئے۔ بہت زیادہ۔ میرے خیال میں سب بچوں کو اپنے باپ سے بہت پیار ہوتا ہوگا۔ پپا بھی تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ روشی نے عجیب سا سوال کیا۔ بھائی بہت لمبا جواب ہے، مگر صحیح دیا ہے جواب۔ دلاور علی خان مسکرا دیے۔ روشی نے الجھ کر ان کی سمت دیکھا۔ مگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے ماں باپ کو ایک چیز سے خوشی مل سکتی ہے تو تم کیا رد عمل ظاہر کرو گی؟ وہ بغور پوتی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں ساری دنیا سے لڑ کر انہیں وہ خوشی دینے کی کوشش کروں گی۔ میں اس عمر میں محسوس کر سکتی ہوں کہ پپا نے کس قدر بور زندگی گزاری ہے۔
उसने बड़े पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। शाबाश, तुम वाकई अली यावर अली खान को अपने बहुत करीब महसूस करती हो। तुम उनकी बहुत अच्छी बेटी हो, उन्होंने खुशी से कहा। रोशी का दिल उछलकर एकदम हलक में आ गया। पप्पा ने मेरी नापसंदीदगी अपने वालिद तक पहुंचा दी है क्या? और अब बाबा साहब उसे इस तरह डील कर रहे हैं? मगर इस तरह तो पप्पा ने फाउल खेला है, चीट किया है मुझे। मगर ये सब उन पर सूट तो नहीं करता। गुस्से से, तकलीफ से उसका पूरा वजूद चूर चूर हो गया। एक बात कहूँ बेटी, अच्छा ये बताओ तुम्हें अपनी खाला कैसी लगी? रोशी को फिर एक झटका लगा। अब खाला का क्या जिक्र? उसने कोफ्त भरे अंदाज में अपने बाल झटके। खाला तो बहुत नाइस है, जवाब ही नहीं उनका, बहुत सोबर, बहुत काइंड। उसने कोफ्त के बावजूद सच बोला। अगर हम हमेशा के लिए उन्हें यहाँ ले आएं तो? दिलावर अली खान ने ऐनक उठाकर दोबारा लगाते हुए कहा। ज़रूर ले आइए, ये मेरे लिए बहुत खुशी होगी, मगर कैसे? अचानक उसे ध्यान आया तो जैसे हड़बड़ाकर सीधी हो गई। तुम्हारे बाप से निकाह के बाद वो हमेशा के लिए यहाँ आ सकती हैं, उन्होंने अखबार सीधा करते हुए कहा। रोशी के हवासों पर बिजली की तरह खुशी कूदी। पापा मान जाएंगे? बकौल आपके, वो तो मानते ही नहीं। वो बुझ गई। वो मान गए हैं, बाबा साहब ने इतला दी। रोशी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। और खाला? उसने किसी अनजाने खदशे को अपने ऊपर मुंडलाता महसूस किया। वो भी मान गई हैं, उन्होंने अपने मखसूस वजह से जवाब दिया। तो फिर देर किस बात की है? खुशी मुकम्मल हो गई। उसका जी चाहा रक्स करने लगे। किसी बात की नहीं, बस एक ही परेशानी है, वो ये कि जवाद को शायद एतराज़ है। बाबा साहब ने मुताला किया। क्यों? उन्हें क्यों एतराज़ है? क्या भाई को ये एहसास नहीं कि पापा ने कितनी टफ लाइफ गुजारी है? पिछले 19 साल से नहीं मिली उन्हें खुशी। बेरंग जिंदगी के 19 साल कम तो नहीं होते। एक साल के 365 दिन, 8 पहर के जालिम बदसूरती। रोशी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब दम बखुद पोती की शक्ल देख रहे थे। जिस रद्द अमल की उम्मीद उन्हें जवाब से थी, वो रोशी जाहिर कर रही थी। भाई को एतराज़ का कोई हक नहीं पहुंचता, महज इसलिए कि लोग कह न दें हम एक जीते जागते इंसान के रंग छीन लें खुशी के, जबकि शरीयत और फितरत को कोई एतराज़ नहीं। मैं भाई से बात करूंगी, उन्हें उनकी कमी का बताऊंगी। वो उठ खड़ी हुई जाने के इरादे से। इधर आओ बेटी, बाबा साहब ने इशारे से उसे अपने करीब बुलाया। वो उनके करीब आ गई। बैठ जाओ, उनका अगला हुक्म था। वो बैठ गई। बाबा साहब ने आहिस्तगी से बड़ी शफकत के अंदाज में उसके सर पर हाथ रख दिया। मैं तो तुम्हें बहुत लापरवाह, गैर जिम्मेदार और बेवकूफ़ समझता था, मगर माशाल्लाह तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। समझ तो खैर वाकई में नहीं हूँ मैं समझदार, मगर इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसास को समझने के काबिल हो जाता है। वो फिर किसी मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। अच्छी बात है, जीती रहो, अब तुम जा सकती हो, उन्होंने इजाज़त दी। बाबा साहब, ये खूबसूरत काम कब होगा? मैं तो बेसब्री से मर जाऊंगी। वो जाते जाते पलटी। बहुत जल्द, मगर सब कुछ बहुत खामोशी और सादगी से होगा। तुम फिक्र ना करो, माहिन सबसे पहले यहीं आएगी और इसके बाद वो तुम्हें और उसे मुस्तकिल तौर पर हरिपुर ले जाएंगे। बाबा साहब ने बड़े ही मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। रोशी खूबसूरत से एहसास से सरशार उनके बेडरूम से बाहर निकल गई। आ जाएं, चाय पी लें, लाल खान भी आने वाले हैं। बालू ने पर्दे सिरकाए और लाइट जला दी। बैठा हुआ हूँ, मुझे नींद कहाँ, बस कुछ अपनी तलाश है, जाने कहाँ खो गए हैं हम। तुमसे तो दिल के पास मुलाकात हो गई, मैं खुद को ढूंढने बहुत दूर तक गया। बालू ने मुंह बड़ा सा बनाया। हमारी तो अकल में नहीं आती हैं बातें, जिनका हासिल ना वसूल, ख्वाम खा का पीटना। खुशी की भी कोई आखिर होती है। चलें, आ जाएं, चाय ठंडी हो जाएगी। जो आता है खुशी की इंतहा पर। बहुत रोए थे उस आंसू की खातिर। वो उठकर बैठ गया और बालों की तरफ देखने लगा, जो लश लश करती जापानी कपड़े के सूट में यूं तैयार थी जैसे कहीं जा रही हो। कहीं जा रही हैं? कोई अच्छा लग रहा हो तो तारीफ कर दिया करते हैं, ज़रूर पूछना है कि आने जाने का। वो जल कर बोली। आलिफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं। अकल पर पत्थर पड़े होते तो ये ना पड़े होते तो ये दिन देखते। वो बुड़बुड़ाई और बाहर निकल गई।
आरिफ की तमाम हिस्सियात चौकस थी। नहायत धीमी आवाज़ के बावजूद बुड़बुड़ाहट उसने सुन ली थी। बाहर बरामदे में बालो चाय आगे सजाए थाल में दाल लिए साफ कर रही थी। उसने नज़दीकी वाश बेसन में मुँह हाथ धोया। वो बहुत उलझ गया था। दिमाग जो मायने समझा रहा था वो समझना नहीं चाहता था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ बालू के पास आकर बैठ गया। बालू ने थर्मास से चाय उंडेली और इसके सामने रख दी। साथ ही नींबू और गुलाब जामुन की प्लेटें भी सिरकाईं। लाल खान नहीं आया अभी तक। उसने चाय का कप उठा लिया मगर नजरें नहीं उठाईं। आ ही जाएगा बूढ़ा हीरो, बालों ने सुलग कर जवाब दिया। आरिफ का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। खासी देर वो गुमगु कैफियत में रहा। आपको इस सहन नहीं करना चाहिए। अब तो आपके पास उसकी अमानत है। आरिफ ने बड़ी रोशन ज़मीरी से कहा। हूँ अमानत, मैं उसे कुछ नहीं दूंगी। उसके लिए इतनी मेहनत करूं, इतने दुख उठाऊं, क्यों? वो भड़क कर बोली। क्या करेंगी आप? आरिफ खौफजदा हो गया। मैं इसके बच्चों की माँ कभी नहीं बनूंगी। एक कांटा मुस्तकिल मेरे दिल में है, एक कांटा उसको भी मिलना चाहिए। वो बड़ी सफाक नज़र आ रही थी। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वालों को दुख नहीं देते। आरिफ ने समझाया। मोहब्बत क्यों नहीं करेगा? उसकी तो लॉटरी निकल आई है। 5 रुपए की लॉटरी पर 5 लाख का इनाम। वो आग उगल रही थी। ये होश की बात नहीं है। आरिफ बस यही कह सका। आप तो खुद बेहोश रहते हैं। बालू ने तंजिया कहा। हमें होश के सबक पढ़ा रहे हैं मगर मेरी बेहोशी नुकसान में किसी के लिए नहीं। ये भी दिन गिनती करने का एक अंदाज है। उसने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा। रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। बेकरारी सही नहीं जाती, जिंदगी मुख्तसर नहीं होती। उसने चाय का कप उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता घूंट भरने लगा। जुर्म में तो आप भी बराबर के शरीक हैं। कभी कभी तो जी चाहता है आपको खाने में जहर दे दूं। बालू की आवाज़ भरा गई। शायद आने वाली तब्दीली से वो और ज़्यादा कनूती हो रही थी। इतना बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकती। ऐसे नसीब कहाँ हमारे। वो हंस दिया और फिर चाय पीने लगा। काश आप लाल खान को घर बसाने के बजाय अपना घर बसा लेते। बालू गोया आज फट पड़ी। उसके अजीबोगरीब अंदाज पर आरिफ चौंक पड़ा। उसके माथे पर शिकने उभर आईं। उसने चेहरा ऊपर उठाने के बजाय सिर्फ नजरें उठाईं और बालू को चंद सानिये देखा। अपने हमरा जो आते हैं इधर से पहले दश्त पड़ता है मियाँ, इश्क में घर से पहले। वो कप रख कर उठ खड़ा हुआ। वो यूँ समझें मैं आज आखिरी बार आपके घर यानी आपके घर आया था। दिमाग मर्द का ख़राब हो या औरत का, देर नहीं लगती। खुदा हाफिज। उसने कदम बढ़ा दिए। ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ ही घर से निकलूंगी। आपके आने के इम्कान तो मुझे इस घर में रोके हुए हैं, वरना यहाँ रखा क्या है। वो थाल रख कर उठ खड़ी हुई मगर फौरन ही गड़बड़ा गई। आरिफ अपनी जगह पत्थर हो गया। सामने लाल खान खड़ा था और शिशंदर सा दोनों को देख रहा था। आरिफ ने नज़रें बमुश्किल उठाईं। लाल खान इसकी तरफ देखने के बजाय सिर्फ बालों की तरफ देख रहा था। लाल खान मैं दोस्त हूँ, डाकू नहीं। ये कम उम्र और कम अकल है, इसे कुछ ना कहना। ज़रा देर के बाद गुस्से में बाज़ औकात लंबी लंबी कहानियाँ बन जाती हैं। जो ना पले तो बेहतर रहता है। अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। खुदा हाफिज। वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। लाल खान ने उसे रोका नहीं। कुछ देर साकित खड़ा रहने के बाद वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बालों ने जाते हुए लाल खान को एक नज़र देखा और कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ डर नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो पुरसकून नज़र आ रही थी। इस हद तक कि उसने चाय कप में निकाल कर पीना शुरू कर दी। अलबत्ता उसका हिलता पाँव इस बात की चुगली खा रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। घर में सिर्फ माहिन की 2 सहेलियां बतौर मेहमान मौजूद थीं, जबकि नोमान के दोस्त अभी नहीं आए थे। मुनीब अहमद के भी 3 दोस्त मौजूद थे जिनसे उनकी बरसों की दोस्ती थी। माहिन अपने मेहंदी लगे हाथ देखकर जाने क्यों बार बार रोए जा रही थी। जिंदगी का नया मोड़ मुड़ते हुए पिछले कई वाक़यात याद आते हैं, कई लोग याद आते हैं। दूसरे उसे नुमान की कई रोज़ा खामोशी भी बहुत सता रही थी। शाम के 7:30 बजे के करीब दिलावर अली खान 10-12 अफराद के साथ घर में दाखिल हुए। ख़वातीन में महताब, तुमैया और यावर अली खान की 3 बहनें थीं। भाई भी दोनों यानी अब्बा और बसीर चचा शामिल थे। उन लोगों की आमद का सुनकर माहिन के ज़ब्त के सारे ही बंधन टूट गए। वो बेतहाशा रोए जा रही थी।
आलमताब नौकरानी के साथ कमरे में दाखिल हुई और रो रो कर पागल होती माहीन को गले से लगा लिया। जब इंसान किसी बड़ी खुशी से नवाजा जाता है तो वो लोग बहुत याद आते हैं जो इस खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होते। लेकिन ये भी ज़िंदगी है, यूँ अपनी जान हल्का नहीं करो, हम भी तुम्हारे अपने हैं। वक्त बताएगा कि तुम हमें कितनी प्यारी हो। शाबाश, चुप हो जाओ। वो अपने दुपट्टे से इसके आंसू साफ करने लगी। साथ ही नौकरानी को चाबी थमाकर सूटकेस खोलने का कहा। माहीन की दोस्त ने नौकरानी के हाथ से चाबी लेकर खुद सूटकेस खोला। ये निकाह का जोड़ा ऊपर ही रखा है, बहुत अच्छी सी दुल्हन बनाना हमारी माहीन को। यावर ने गले में एक हार भी नहीं पहना, मगर हमने उससे कह दिया है जब दुल्हन के पास जाओ तो गले में हार ज़रूर डाल लेना, आखिर उसके भी तो अरमान होंगे। उन्होंने मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया और उठ खड़ी हुई। माहीन की सहेलियां इसे दुल्हन बनाने की तैयारियां करने लगीं। उसी दम नौकरानी ने आकर इतला दी कि फ़ोन पर रोशी बुला रही है आपको। उसने माहीन की तरफ इशारा किया। माहीन चौंक पड़ी। क्या रोशी आई नहीं? उसे क्यों नहीं लाए? अजीब लोग हैं। रक्षी, फ़ोन तो लाउंज में है या भाई के कमरे में, मैं नीचे कैसे जाऊं? उसका चेहरा हया से चमकने लगा। वो सब लॉन में है, लाउंज खाली पड़ा है। अलबत्ता यावर भाई इस तरफ से बैठे हैं कि लाउंज उनकी नज़रों के सामने है। अब ये तुम्हारा मसला है, फिर तो मैं नहीं जाऊंगी। उसे ढेर सारी शर्म आ गई। कुछ फितरी वारदातें होती हैं जो अकल से मावरा होती हैं और सबके लिए एक सी होती हैं। मैं कह देती हूँ कि तुम निकाह पर राज़ी हो मगर साथ जाने पर राज़ी नहीं हो। जल्दी उठो, दूसरी तरफ बिल बन रहा है। रक्षी ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। मगर तुम तो कह रही हो, वो हिचकिचाई। अच्छा, अब ज़्यादा बनो मत। 1 घंटे बाद उनके कंधे से कंधा मिलाए गाड़ी में बैठी होंगी और जब हम सुबह जाकर मिलेंगे तो। माहीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ज़्यादा बदतमीजी नहीं, उसने हया आमेज खफगी से इसे टोका और दुपट्टा सर पर फैलाकर तेज़ी से लाउंज में आई और लाउंज का दरवाज़ा बंद करने की हिदायत देते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसकी आवाज़ में हिजाब सा दर आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी हजूर, रोशी की खनखनाती आवाज़ एयरपीस में से उभरी। माहीन का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। पप्पा के हाथ तो नकेल डालने वाली कोई चीज़ है नहीं। आपने कैसे डाली? वो खिलखिला रही थी। रोशी प्लीज़। उसने होंठ दांतों तले दबा लिए। वैसे मेरे पप्पा तो हर किस्म की सूरत हाल में बड़े रफ से महसूस होते हैं। आपको प्रपोज करते हुए भी वैसे ही थे क्या? वो बदस्तूर चहक रही थी। तुमने ये बातें करने के लिए इतनी दूर से फ़ोन किया है? माहीन भी बिला आखिर हंस पड़ी। जी नहीं, आपका हाल अहवाल पूछने और पप्पा की शिकायत लगाने के लिए फ़ोन किया है, वो मुंह बसूर कर कह रही थी। कैसी शिकायत? माहीन उलझी। अपनी शादी में हमें क्यों नहीं लाए? हम भी तो देखें, नाजुक नाजुक जज्बों में घिरे पप्पा कैसे लगते हैं। क्या हमारा दिल नहीं है? वो बनावटी उदासी जाहिर करते हुए बोली। तुम कैसी हो? खुश तो हो ना? माहीन ने बड़े मोहतात अंदाज में पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास। खुशी से पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे। हंसी। क्या आप दुल्हन बन चुकी? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। माहीन खामोश रही। निकाह हो गया? दूसरा सवाल हुआ। बदतमीज़, कोई और बात करो। माहीन झींप गई। अच्छा, कोई और बात करते हैं। ये बताएं पप्पा कैसे लग रहे हैं? वो शरीर हो गई। देखना वहाँ आकर तुम्हारी कैसी पिटाई करती हूँ। माहीन के होठों पर शर्म की मुस्कुराहट खेल रही थी। अच्छा, तो फिर आ रही है ना? रोशी का कहा बहुत जानदार था। माहीन ने रिसीवर रख दिया और गुलनार चेहरे के साथ ऊपर चली आई। जब बेटी ने यह हाल कर दिया है तो बाप का क्या हाल करेगा? उसकी दोस्त ताबिंदा ने उसके चेहरे का रंग देखकर कहा। माहीन इसे घूर कर रह गई। 7th सी में एक नई कहानी का आगाज हो रहा था। बाहरी समंदर की ज्वालानियाँ थी और अंदर जावर अली खान के अंदर तूफान करवटें ले रहा था। इंतहाई चमकदार सुर्ख रंग के दुपट्टे और तंग पजामे में दुल्हन बनी माहीन घर की खवातीन में घिरी हुई थी। घरेलू मुलाजमीन के अतवार में भी तब्दीली आती हुई महसूस हो रही थी। दिलावर अली खान रूनमाई में हीरे का एक कंगन देकर ऊपर अपनी ख्वाबगाह में जा चुके थे। यावर अली खान अपने एक हममर्तबा दोस्त के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू होने के बावजूद माहीन पर एक उड़ती पड़ती नज़र डाल रहे थे, जिससे सुमैया जाने कौन कौन से किस्से बयान कर रही थी। आज से बरसों पहले भी मुनीब अहमद की एक बेटी दुल्हन बनकर उनके घर में आई थी, जिसके फर्शी गरारे को 4 मुलाजमाओं ने संभाला था। सुच्चे काम से बोझल दुपट्टे को उनकी बहनें संभाल रही थीं।
ملازماؤں اور بہنوں کی وجہ سے وہ دلہن سے خاصے فاصلے پر چل رہے تھے۔ ڈومینو نے استقبالی گیت گائے، ملازموں نے پھول اور سکے نچھاور کیے۔ ان کی والدہ نے دلہن کے کمرے پر کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پر بطور خوش آمدید بوسہ دیا تھا۔ گھر میں شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بچوں کا شور و غل، نوکروں کا ادھم، خواتین کی باتیں، ڈومینو کے حلق پھاڑ قسم کے گیت اور اس سے بھی بلند ڈھولکی کی آواز۔ جبکہ آج پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر میں نئی دلہن آئی ہے جو خاصا پرسکون حالت میں تھا، جبکہ وہ دلہن سسرال پہنچ کر بھی کافی دیر روئی تھی اور کئی بار بے ہوش ہوئی تھی۔ یاور علی خان اس کے پاس جانے سے گھبرا رہے تھے کہ نازک مزاج دلہن کہیں تماشا نہ بنا دے، جبکہ دلہن کے حسن کے چرچوں نے انہیں بے صبرا بنایا ہوا تھا کہ آنکھوں کے ڈورے یکلخت گہرے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے سگریٹ سلگایا، آنکھوں میں خوشی اور سرمستی کے ڈورے عجیب سی وحشت جھلکنے لگی تھی۔ وہ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ آئے۔ عالم تاب ان کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ کہاں جا رہے ہو یاور؟ انہوں نے یاور علی خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ٹھہرایا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ اور ہاں بھابھی بیگم، فی الحال مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ ماہین نے ان کے جملے سن لیے تھے۔ تھکے ہوئے دلہا کسی لڑکی کو خواب نہیں ہوتے۔ جسم و جان میں عجیب سی کوفت بھر گئی۔ مہندی، نیل پالش، انگوٹھیوں سے سجے ہاتھوں کو اس نے کچھ دیر ٹک باندھ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میرے بچوں کو سلا کر بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو سلا کر پھر اس کے پاس آ گئیں۔ یہ جو کنگن ان لوگوں نے مجھے چڑھائے تھے، ان کا ڈیزائن بالکل ویسا ہی ہے، اس نے ماہین کی کلائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سمیہ مسکرائی۔ ہاں، ماہین نے اسپات میں سر ہلایا۔ کیا ہے؟ سمیہ نے شرارت سے پوچھا۔ ہم آپ کی بہو ہیں، اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ سمیہ اپنے بچوں کو سلا کر پھر اس کے پاس آ گئی تھی۔ بری میں جو کنگن ان لوگوں نے مجھے چڑھائے تھے، ان کا ڈیزائن بالکل ایسا ہی ہے، اس نے ماہین کی کلائیوں میں بھرے ہوئے کنگنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سمیہ مسکرائی۔ ہاں، ماہین نے اسپات میں سر ہلایا۔ بتائیں کیا ہے؟ سمیہ نے شرارت سے پوچھا۔ بہو ہیں ہم، اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ سمیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیسی تاریخ رقم ہو رہی ہے، بہو سانس کو بیا کر لائی ہے۔ وہ ہنسی۔ روشی کو تو مارے بے صبری کی نیند بھی نہیں آئے گی، لڑکیوں نے الگ اس کا ناک میں دم کر رکھا ہوگا۔ کہہ رہی تھی سمیہ بھابھی، آپ کتنی لکی ہیں، ہمارے باپ کی شادی میں شرکت کر رہی ہیں۔ بہت شیطان ہے، سب سے زیادہ امی سے اسے ہی ڈانٹ پڑتی ہے، ڈر تو جیسے اسے کسی کا ہے ہی نہیں۔ ماہین کو جمائیاں سی آنے لگیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے تو اس کو نیند بالکل ہی اڑ گئی تھی۔ آپ کے لیے چائے یا کافی بناؤں؟ اسے نیند کو بھگائیے گا، بہت بور ہو رہی ہیں، اس نے شریل لہجے میں کہا۔ ماہین نے جھیم کر آنکھیں جھکا لیں۔ سمیہ عالم تاب بہو سے مخاطب ہوئی۔ جی امی۔ سمیہ ایک دم مؤدب ہو گئی۔ میرا خیال ہے ماہین کو کمرے میں چھوڑ آؤ، اگر یاور آرام کر رہے ہیں تو یہ کیا کہتی ہیں، یہ بھی آرام کر لیں گی، ٹھیک ہے نا؟ عالم تاب کو ایک وقت میں کئی کام نپٹانے کی عادت تھی۔ ادھر سمیہ سے مخاطب تھیں، دوسری طرف کلو کو خاص دان توڑنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے امی، سر میں زیادہ درد ہو رہا ہوگا تو سر ہی دبا دیں گی، یاور چچا کا فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے ماہین کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہین کے چہرے پر الواحی رنگ بکھر گئے۔ وہ دونوں زینے طے کر کے اوپر آئیں۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ پر سمیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کلو بلا کی طرح سر پر منڈلا رہی تھی۔ سمیہ نے ڈپٹا، وہ دانت کھاتے ہی بھاگ لی۔ بہت شوق ہے اسے دلہنیں دیکھنے کا، اب دیکھیے گا جب تک آپ میں سے تازہ دلہن کی خوشبو آتی رہے گی، سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگی رہے گی، ذاتی تجربہ ہے میرا۔ سمیہ ہنسی اور دروازے پر دستک دی۔ ماہین بھی اس کی دلچسپی پر مسکرا رہی تھی۔ کون؟ یاور علی خان کی بوجھل آواز آئی۔ ہم ہیں چچا، آ جائیں۔ ہاں، غالباً یہ اجازت تھی۔ سمیہ نے دروازہ کھولا اور ماہین کو تھامے اندر آئی۔ یاور علی خان سفید کرتے پاجامے میں ملبوس بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ماہین کو دیکھ کر بھی ان کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ آپ کے لیے کافی بھجواؤں؟ ماہین کو بیڈ پر ٹکاتے ہوئے سمیہ یاور علی خان سے مخاطب تھی۔
نہیں, انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔ سمیہ ماہین کا ہاتھ دبا کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ ماہین اسی طرح بیٹھی تھی کہ یاور علی خان اس کی پشت پر تھے۔ آپ چینج کر لیں اور ایزی ہو جائیں۔ برسوں بعد ذہن کچھ ریلیکس ہوا ہے۔ میں بہت سارا سونا چاہتا ہوں اب سے دیر تک۔ امید ہے آپ اچھے لائف پارٹنر کی طرح میرے احساسات کا پاس کریں گی۔ غالباً وہ سیدھے ہو چکے تھے۔ الفاظ اگرچہ بہت منتخب تھے مگر اعصاب کے لیے اینٹ پتھر سے کم نہیں تھے۔ اس کے سارے لطیف احساسات ہوا ہو گئے۔ اس نے آہستگی سے دوپٹے کی پنیں نکالنا شروع کر دیں۔ اتنے دل در، اتنا کشت اور ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مرد بھی کیا ہے، جیسے کوئی امتحانی پرچہ، ساری عمر حل کرتے رہو۔ یہ وہی ہے جو پرپوز کرتے وقت تھے۔ دو موتی اس کی آنکھوں پر آ کر ڈھلک گئے۔ اس نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھا۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر سیدھے لیٹے تھے۔ ماہین نے دوپٹہ صوفے پر اچھال دیا اور پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے بے آواز وارڈروب تک آئی۔ سامنے بہت خوبصورت بیبی پنک نائٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کوفت بھرے انداز میں اسے ایک طرف سرکا دیا اور شلوار قمیض بلو کلر کی نکال لی جس پر بہت ہلکا کام بنا ہوا تھا۔ سب کپڑوں میں اسے نسبتاً یہی زیادہ آرام دہ نظر آیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور باہر آ گئی۔ میک اپ اگرچہ بہت ہلکا تھا پھر بھی سونے سے پہلے صاف کرنا بہت ضروری تھا۔ مگر عجیب سی کوفت اور کاہلی سوار ہو گئی تھی۔ نائٹ بلب اس نے جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ ایک کشن اٹھا کر صوفے پر تکیے کے ساتھ جگہ رکھا اور دراز ہو گئی۔ بات کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، دل کیوں نہیں بھر آتا؟ آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ اپنے احساسات کے لیے کتنے کانشیس ہیں۔ یہاں یہ حال کہ رونمائی میں ایک پھول بھی نہیں۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ اس نے اپنی سو پر بھی بہت کنٹرول کیا ہوا تھا، پھر بھی عجیب طرح کی بے اختیاری تھی۔ جانے کون سا پہر تھا جب اسے وہم سا ہوا کہ یاور علی خان نے اسے آواز دی ہے۔ اس کے سارے حواس جاگ گئے۔ ماہین، واقعی وہ اسے آواز دے رہے تھے۔ وہ چپ لیٹی رہی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو۔ اس کی بوجھل آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ ڈی سی صاحب ضابطے کی کارروائی نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کم لوگ نہیں ہیں۔ آپ مجھے آواز نہ دیں، میں سو چکی ہوں۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کا اثر تھا۔ اس نے کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ تو کیا تم انہیں امی کہو گی؟ بڑا عجیب سا لگے گا۔ بیا کو گتھیاں سلجھانے کا بڑا شوق تھا۔ بڑی اپ ٹو ڈیٹ سی ہیں وہ، انہیں ممی کہا جا سکتا ہے۔ لالی نے اپنی عقل کے کچھ کیڑے جھاڑنے کی کوشش کی۔ کیا بیکار کی بحث کرتے ہو تم لوگ؟ جو رشتہ قائم ہو چکا ہے اسی حوالے سے اگر انہیں اماں جی بھی کہہ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ چینو نے اپنے حصے کی ضروری مداخلت کی۔ آپ تو بس رہنے ہی دیا کریں آپا۔ روبی نے جل کر انہیں دیکھا۔ بھائی ہمیں تو بالکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس شادی میں سارے گھر والے کیوں شریک نہیں تھے۔ مونا کو عدم شرکت کا بڑا ہی قلق تھا۔ دوسروں کی دلہن آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ہاں کی دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہے۔ ملتی بھی ہے تو باسی۔ وہ آ جائیں یہاں، ہم انہیں تازہ کر لیں گے۔ زری نے دلاسا دیا۔ لو بھلا یہ دلہن تازہ کریں گی؟ گلو منہ دبا کر ہنسی۔ زری خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ ہائے، لگی تو بڑی پیاری ہوں گی۔ سمیہ بھابھی کے بڑے مزے ہیں۔ بڑی امی انہیں ہر جگہ ساتھ لٹکا لیتی ہیں۔ اپنی قمیض کی کڑھائی کے دوران رشک کرتے ہوئے وہ بولی۔ وہ بہو جو ہے اس گھر کی، بیا نے یاد دلایا۔ بہو ہونے میں بھی بڑے مزے ہیں، لالی نے ٹکڑا لگایا۔ فکر نہ کرو، تم بھی کل کو کسی کی بہو بنو گی، پھر یوں ہی ساس کے ساتھ لٹکتی رہو گی۔ مونا نے دلاسا دیا۔ ہائے مونا باجی، کچھ کریں نہ کریں آپ، باتیں بڑی اچھی کرتی ہیں۔ لالی نے ایک سرد آہ کھینچی۔ خاصی مایوس ہو، کسی طرح افاقہ ہو سکتا ہے؟ روبی نے ہمدردی کی۔ ظاہر ہے جلد ہی شادی ہے۔ تانیہ بہت آخر میں حصہ لیتی تھی۔ اس وقت تو ویسے بھی نوٹس تیار کر رہی تھی، مگر وہاج بھائی تو بھی پڑھنے باہر جائیں گے۔ تانیہ بچپن ہی سے اپنے کزن وہاج سے منسوب تھی۔ اس کی وجہ شاید ان دونوں کی مائیں تھی جو کزن ہونے کے ساتھ ساتھ گہری سہیلیاں بھی تھیں۔ کہیں انہیں ہی وہاں کوئی پٹی پڑھانے نہ بیٹھ جائے۔ جیسے کہ کاکا جان لے آئے تھے اپنے ساتھ گوروں کی غلطی، وہ صرف گوروں ہی کی غلطی نہیں تھی، کاکا جان کی بھی غلطی تھی۔ چینو کو ویسے بھی دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھنی آتی تھی۔ کیوں بیچاری تانیہ کو ڈرا رہی ہو؟ ویسے ہی ہوا سے مل جاتی ہے،
कोई रोग वोग लग गया तो समझो गई। गुल्लू हमेशा से ही हमदर्दाना रोल अदा करने के लिए वक्फ थी या खुद को कर रखा था। एक तो तुम लोगों से भी हद है। हम पापा और खाला के बारे में बात कर रहे थे। रोशी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हम उसी तरफ आ रहे हैं, रूबी ने तसल्ली दी। इस तरह आई तो जाने कब पहुंचोगी। वो लोग आजाद पहुंच रहे हैं, इत्लान अर्ज है। वो जलकर बोली, हाँ तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? हम किस तरह इस्तकबाल करेंगी जैसे फिल्मों में बिछड़ी हुई बेटी एक हौलनाक चीख मारकर माँ के गले लगती है। लाली ने संजीदगी से कहा, अगर मैं बिछड़ी हुई बेटी नहीं होती, मगर मैं तो बिछड़ी हुई बेटी नहीं हूँ। उसने सुलग कर तस्दीक की। मैं ना उनको अम्मी कहूँगी ना मम्मी, मैं उन्हें खाला ही कहूँगी। तब्दीली पप्पा की ज़िंदगी में आई है, वो तो उनके साथ ही जाएंगी। उसने फैसला सुनाया। और क्या, तुम तो वैसे भी परवरिश पा चुकी हो। बिया ने गिरा लगाई। परवान चढ़ चुकी? शीनू ने अपनी मखसूस हंसी के साथ तस्दीक की। या अल्लाह, गुल्लू हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। इनकी बचकाना बातों पर इनकी शफीक और संजीदा तबीयत गुदगुदा कर रह जाती थी। अरे बारी से पूछो, यावर मामू कब पहुँचेंगे? मूना ने बिया को मुखातिब किया। क्यों, क्या बारी के अलावा और किसी को मालूम नहीं होगा? ख्वामखा किसी को इतनी अहमियत देना। रोशी ने मुंह बनाया। शीनू ने चौंक कर रोशी की सूरत देखी, फिर मुस्कुराकर गुनगुनाने लगी। जल के दिल खाक हुआ, आंख से रोया न गया। जले हमारे दुश्मनों के दिल। रोशी बुड़बुड़ाई। वो तो गाना गा रही है, तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले जाती हो? जरी ने ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, उन्हें मेरी ही किसी बात पर नगमात याद आते हैं। बड़ी आई कहीं की मैडम नूरजहां। उससे अपने फाइल और बैग झपटने के अंदाज में उठाए। वैसे आजकल बारी की चहल टहल में खासी कमी वाक़ई हो गई है। बड़े आराम दे रहे हैं बाबा साहब। गुल्लू हंस पड़ी। कोई बात तो है, अब तो देखकर मुस्कुराता भी नहीं। तानिया ने सादगी से कहा। तुम्हें देखकर मुस्कुराया था? मूना ने शरारत से उसे घूरा। उसको तो आदत है मुस्कुराने की, तानिया ने जवाबन घूर कर कहा। हमें देखकर तो कभी नहीं मुस्कुराया। हम ये समझ कर नजरअंदाज करते रहे कि दांत पूरे नहीं होंगे। शीनू हंसी। दांत तो उसके बहुत खूबसूरत है, लाली ने मासूमियत और बर्जास्तगी से कहा। हॉल कमरे में कह कहे गूंज गए। अच्छा ये बताओ, पूरे 32 हैं? दरी हंस हंस कर लौटपट हो रही थी। नहीं, अभी अक्लदार नहीं निकली। शीनू ने कनखियों से रोशी की तरफ देखा। खैर वो तो पूरे ही खूबसूरत है। रूबी ने शरीर अंदाज में कहा। क्या आप लोग हर वक्त बारी बारी करते रहते हैं? रोशी ने तलखी से टोका। भाई इस नाम की तो सबको आदत है। फ़र्क यह है कि कोई मुंह से निकाल देता है, कोई दिल ही दिल में लेता है, और याद वो सबको रहता है। शीनू कब बात आने वाली थी, साथ ही गुनगुनाना भी शुरू कर दिया। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। इसे दिल देने वाला बड़ा ही बेवकूफ़ होगा, घोड़ों के चारे में गुम कर देगा। रूबी ने गिरह लगाई। इसका ज़्यादा वक्त घोड़ों में गुजरता है। मैं तो उसके आगे चलते हुए भी घबरा जाती हूँ कि कहीं पीछे से टुक टुक की आवाज़ ना आने लगे। बेसाख्ता कह कहे उभरे। अरे अब ऐसा भी घोड़ा परस्त नहीं है, बेचारे की जॉब ही ऐसी है। तानिया को किसी की दुर्गत बनते देखकर बड़ी जल्दी तरस आ जाता था। बाज़ इंसानों की भी परिस्थिति कर सकता है, गर्द हैं उसमें। शीनू ने कहका लगाया। रोशी ने अपनी किताबें उठाई जो वो नोट्स तैयार करने की गर्ज से साथ रखे हुए थी और बाहर निकल गई। गर्ड्स हैं, चेयर डाउन, दिलकश उबाश, नॉनसेंस। सामने ही प्याजी रंग के शलवार कुर्ते में मलबूस पाँव में सुबक सी चप्पल डाले झूमर चली आ रही थी। रोशी ठटक कर रुक गई। ये मोहतरमा, इधर किधर? आप यहाँ कैसे? वो अपनी सद मोहरी छुपा नहीं सकी। बात ज़रूरी लोग तो इस तरफ आते ही नहीं। हमने सोचा चौधरानी साहबा कराची गई हुई हैं, अच्छा मौका है इस तरफ की सैर का। यह कौन से गुंचे चटक रहे हैं जो आप सैर के घर से तशरीफ़ लाई हैं? वो बड़े तंज और तल्ख लहजे में गोया हुई। गुंचे न सही, गुंचा तो चटकता है। वो बड़े सुरों में हंसी। मुझे लगता है आप चटकने देंगी नहीं। उसके लहजे में जहर उभर आया। वो ऊपर से आ रही थी। झूमर को देखकर चौंक पड़ी। चंद सानिया रुक कर बोली, बारी कहाँ है? रोशी ने मामा को मुखातिब किया। बारी एयरपोर्ट गाड़ी लेकर जाएंगे ना, तैयार हो रहे हैं। 2 गाड़ियाँ जाएंगी, एक ड्राइवर लेकर जाएगा और दूसरी बारी खान। आप भी चली जाइए खान के साथ, खुशी का मौका है। क्या खुशी मिली है इस हवेली को?
झूमर की पेशानी पर शिकनें पड़ गईं। आप अपनी तवानाई ज़ाया ना करें, आपके मतलब कि इधर कोई बात नहीं। आओ ज़रा जल्दी से बारी को तो बुला दो। उसने झूमर की तरफ रुख मोड़ कर मामा को मुखातिब किया। जी, मामा जाते जाते पलटी। इधर आओ, देखो ज़रा जल्दी चलते खुश हो जाए, आपका तूफ़ानी दौरा बेकार नहीं गया। किस मुंह से शुक्रिया अदा करें? झूमर खिलखिलाई। रोशी जैसे शोलों में घिर गई। कितने मुंह हैं आपके? उसने बज़ाहिर मजाक किया। बारी तेजी से जीने तय करता नीचे आया, मगर दरमियान में ही रुक गया, जैसे फैसला ना कर पा रहा हो कि आगे बढ़े या वापस चला जाए। ब्लैक सफारी सूट में नक्शक से तैयार वो बिल्कुल पुरसकून और फ्रेश नज़र आ रहा था। आगे बढ़ो भाई, क्या पत्थर बन गए? रोशी बड़ी जहरीली हंसी हंस कर बोली। नहीं खैर, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो संभल कर आगे बढ़ा। ये झूमर भाभी आपको ढूंढती फिर रही हैं। मैं तो खुद बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर भी सोचा इनकी मदद कर दूँ। कोई गैर तो है नहीं? रोशी मानीखेज़ अंदाज में मुस्कुराई। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता अगर आपको हो तो। वो खामोश हो गया। आ गए, ये लीजिए, कर लीजिए ज़रूरी बात, फिर मौका मिले ना मिले। अब मैं जा सकती हूँ? उसने बारी की सिमत देखा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं कि आपको गायब करना ज़रूरी हो। जी फरमाइए, क्या है वो बात? वो झूमर की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो बहुत पुरसकून नज़र आ रही थी। चलो वहाँ बैठते हैं। झूमर उससे ज़्यादा पुरसकून थी। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, रास्ता खासा लंबा है। वैसे मेरे और आपके दरमियान कोई ज़रूरी बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइंदा इस किस्म की जहमत ना कीजिएगा प्लीज़। ओके। ताल्लुक़ पैदाइशी नहीं होते, बाद में भी हो जाते हैं, झूमर ने बड़े निडर अंदाज में कहा। आपने शायद एक बात यहाँ हवेली में नोट नहीं की, यहाँ मर्दाना जनाना अलग अलग होता है। सिवाय मेरे यहाँ से वहाँ कोई दंदनाता नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? सोचा सिर्फ इसलिए कि कूट कूट कर मेरे अंदर ये बात उतार दी गई है कि हवेली की तमाम छोटी बड़ी ख़वातीन का एहतराम मुझ पर वाजिब है। मुझे हमेशा उनसे एहतराम का रिश्ता इस्तवार करना होगा। इससे हटकर मैं किसी से किसी किस्म की तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मुझे उससे हमदर्दी है, सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी। वस्सलाम। झूमर ने ख्याल से चौंक कर बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ रोशी की तरफ देखा। मैं ठीक कर लूँगी इसे। नस्लन अफ़गानी हूँ जो जीतने के लिए लड़ते हैं, उसने बड़े एतमाद से कहा और उस रास्ते की तरफ चल पड़ी जहाँ से आई थी। रोशी की तो खाक समझ में आता कि ज़रा देर में हुआ क्या है। अगली मुलाकात में देखना कैसे छक्के छुड़ाऊंगी, तुम भी मौजूद रहना, बड़ा मज़ा आएगा। वो इससे कुछ फासले पर गोया हुई और फिर पलट कर चल पड़ी। रोशी हैरान परेशान सी खड़ी रह गई। रात 11 बजे लड़कियों ने पूरे जोशो खरोश से दुल्हन का इंतज़ार किया। 11:30 बजे तक उन्हें जमाइयाँ आने लगीं। वो हॉल कमरे ही में इधर उधर ढेर हो गईं। नौकरों को जागते रहने की हिदायत थी। वो इधर उधर आ जा रहे थे। उन सब में मामा बिल्ली की कारकर्दगी सबसे भारी थी। 11:15 बजे किसी ने आकर हॉल कमरे में हलचल मचा दी कि दुल्हन आ गई। सबसे लंबी जस्त रोशी की थी। सर पर दौड़ती हुई पोर्टिको में आई। आने वाले सब वहीं मौजूद थे। सुमैया ने गोद में बेटे को लेने के बावजूद माहिन को शानों से थाम रखा था। रोशी चंद सानी अपनी जगह टुकटुकी, फिर एकदम माहिन से लिपट गई। वो बुरी तरह रो रही थी। जवाबी कार्रवाई में माहिन ने भी रोना शुरू कर दिया। अरे ये क्या करने लगी? खुशी का मौका है, खुशी की तरह मनाओ। आलमताब ने दोनों को अलग अलग किया। सारी लड़कियां और ख़वातीन वहां आ मौजूद हुईं। बुरी बात है, भला रोने का कौन सा मौका है? चलो अंदर। बाबा साहब छड़ी टिकाते हुए सबसे पहले आगे बढ़ गए। बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। हॉल कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी गईं। मैरून साड़ी में मलबूस माहिन चेहरे से बहुत मुज़महिल नज़र आ रही थी। रोशी इनके पहलू में बैठ गई। बाकी लोग खड़े हुए पड़े पुरशौक अंदाज में दुल्हन को देख रहे थे। आप यकीन करें खाला, मारे खुशी की मेरी बुरी हालत है। समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। रोशी ने माहिन का मेहंदी रचा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। माहिन के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। आप तो सफ़र से बहुत थक गई होंगी। क्या फ्लाइट लेट थी? बारी तो जाने कब से गया हुआ था। उसने मोहब्बत से माहिन का चेहरा देखा। खाना वाना तो हम खा चुके हैं। तो मामा बिल्ली से कहकर यावर के कमरे में दूध भिजवा दो, आलमताब ने बहू से कहा। सुमैया फ़ौरन बाहर चल पड़ी।
माहिन अब तुम भी आराम करो, सुबह से बैठी हुई हो, रूनुमाई वगैरह सब सुबह कर लेंगे, तारुफ तो तुम्हारा सबसे पहले ही हो चुका है। आलमताब ने माहिन को शानों से थाम कर उठाया। जाओ लड़कियों, अब तुम भी सो जाओ, सुबह को दुल्हन से बात करना। चलो शाबाश, मैं भी चलूँ खाला के साथ। रोशी पुरशौक अंदाज में उठ खड़ी हुई। हाँ, तुम भी आराम करो, आलमताब ने इसे टोक दिया। माहिन को लेकर यावर अली खान के कमरे में सुमैया चली गई। यावर अली खान सोफे पर नीम दराज इसी तरह सूटिट बूटिट सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। माहिन और भावज को देखकर उठकर बैठ गए। तबीयत तो ठीक है ना यावर? आलमताब उनके करीब जाकर पूछने लगी। जी भाभी, बिल्कुल ठीक है, अब तो ठीक हो ही जाएगी। उसका अंदाज पुरस्कार सा था। अब तक एक निगाह गलत भी उन्होंने माहिन पर नहीं डाली थी। अच्छा फिर कपड़े वगैरह तब्दील कर लो, चाय या कॉफ़ी भिजवाऊँ? उन्होंने जाते जाते पूछा। नहीं, बरसों बाद तो नींद टूट कर आना शुरू हुई है, बहुत सोना चाहता हूँ। उनके लहजे में थकन का तासुर था। सैंडल उतारते उतारते माहिन ने चौंक कर उनका चेहरा देखा, मगर कुछ खोज नहीं सकी। भाभी बेगम, उन्होंने जाते हुए आलमताब को आवाज़ दी। वो रुक गई। मेरा एक ज़रूरी काम याद है ना आपको? पहली फुर्सत में वहाँ कहलवा दीजिए कि नाज़नीन की बहन माहिन से मैंने निकाह कर लिया है और माहिन अब हवेली में मौजूद है। आलमताब ने एक उलझी हुई नज़र माहिन पर डाली। ठीक है, सुबह इतला पहुँचा दूंगी, फिक्र नहीं करो, वो बोली। सुबह बहुत देर से होती है, उन्होंने गले से टाई खींचते हुए बेजारी से कहा। अच्छा ठीक है, वह आहिस्तगी से बोली और बाहर निकल गईं। माहिन हैरान परेशान उनकी तरफ देख रही थी। उनका मुबहम सा पैगाम इसकी पल्ले खाक पड़ा था। माहिन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर जेवरात उतारने लगी, मगर इसकी सारी हसियात यावर अली खान की तरफ मुतवज्जा थी। उसने चूड़ियों समेत तमाम जेवरात उतार डाले थे, सिर्फ एक कंगन दाएं कलाई में रहने दिया। यावर अली खान ऐन इसके पीछे आ खड़े हुए और टाई की नॉट ढीली कर रहे थे। आपको तो बहुत थकन हो गई होगी, उन्होंने आईने में इसे देखते हुए मुखातिब किया। जाहिर है प्लेन तो मैंने ही घसीटा था, वो बावजूद कोशिश के अपने लहजे की तलखी नहीं छुपा सकी। यावर अली खान के होठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आपने सारे जेवरात उतार डाले, हमने तो ठीक से आपको देखा भी नहीं। वो टाई खींच कर उतारते हुए इसकी तरफ बढ़े। आपको ज़रूरत भी नहीं कुछ देखने दिखाने की, वो तुनक कर बोली और उठ खड़ी हुई। उसने खामोशी इख्तियार कर ली और वह कमीज़ उतारकर सोफे पर फेंक कर चले गए। माहिन के सामने ये उनकी पहली बेतकल्लुफ़ी थी। माहिन नज़रें चुराकर अपना सूटकेस खोल कर झुक गई। इसने उस साड़ी ने इसे आजिज़ बना दिया था। पहनी भी पहली मर्तबा थी, इसीलिए बहुत उलझ रही थी। वो जल्द से जल्द पीछे छुड़ाना चाहती थी, जल्द से जल्द कोई आरामदेह लिबास पहनना चाहती थी। वो बेड पर इस तरह बैठ गए थे कि जैसे देर तक बैठने का प्रोग्राम ना हो। दोनों हाथ पुश की तरफ करके बेड पर बैठे वो बगौर उसे सूटकेस उलट पुलट करते देख रहे थे। माहिन जी, उसका हनूज अंदाज सर्द था। बात सुनो, सुनाइए। सुन रही हूँ। उसके अंदाज में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। इस तरह नहीं, यहाँ आओ। उनके लहजे में ख़ास कैफियत महसूस होते ही माहिन का दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा। जब ये अंदाज नहीं था तो भी उलझन थी, अब अंदाज बदला तो भी मुश्किल हो रही थी। वो सीधी होने के बजाय और मसरूफ़ हो गई। मैं कुछ कह रहा हूँ माहिन, उनके अंदाज में बला की रसानियत थी। मैं सुन रही हूँ ना। उसने भी कदर धीमेपन का मुजाहरा किया। माहिन इधर आओ। माहिन अजीब बेबसी के आलम में सीधी हो गई कि बात माने तो मुश्किल, ना माने तो उससे ज़्यादा मुश्किल। वो सूटकेस इसी तरह खुला छोड़कर इनके करीब चली आई। जी बैठ जाओ। उनके अंदाज़ नशिस्त में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। उसने बेड पर नज़रें दौड़ाकर अपने बैठने के लिए मुनासिब जगह तलाश की, फिर इनसे कुछ फासले पर बिल्कुल किनारे पर टिक गई, इस तरह के जैसे मौका पाते ही भाग खड़ी होगी। उनके बदले हुए लबे लहजे पर इसकी घबराहट दोहरी हो गई थी। इसी वजह से नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों यूँ महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे नाराज़ हो। उनकी नज़रें आज बिल्कुल ही दूसरे अंदाज लिए हुए थीं, जो उसके लिए बिल्कुल नया था। लगता था दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। हथेलियाँ पसीने से भीग रही थीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि कपड़े तब्दील करके बस वो मेरा दिल चाह रहा था कि कपड़े तब्दील करके जल्दी से सो जाऊं। नींद आ रही है ना? उससे खुद को संभाल कर बड़ा नपा तुला जवाब दिया।
कराची में 24 घंटे आपके साथ गुजारे हैं, उनमें से 17 घंटे आपने सोकर गुजारे हैं, क्या नींद पूरी नहीं हुई? उसने अंदाज़ा नशीत बदला और आगे की तरफ झुककर साइड टेबल से सिगरेट केस और लाइटर उठाया। अगर कोई शख्स कमरे में तन्हा हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहा है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। फिर क्या फ़र्ज किया जाना चाहिए कि क्या कर रहा है? उन्होंने भी सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। वो ज़रूर किसी ज़रूरी काम में भी मसरूफ़ हो सकता है। तन्हाई में इंसान मुताला भी कर रहा होता है और भी बहुत से काम होते हैं। इसकी बात काटते हुए सारा धुआं उसके चेहरे पर छोड़ दिया। ये उनकी अपनी मनकूहा के साथ पहली लतीफ़ सी शरारत थी। माहिन ने चौंक कर उनकी सिमत देखा, साथ ही हाथ से सामने से धुआं उड़ाया। हलक में आंसुओं के फंदे लगने लगे। कितनी बड़ी बेहुसी होती है कि पता होता है कि कोई रो रहा है, इसके बावजूद उसके एहसासात नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। उसने खफकी भरे लहजे में जवाब दिया, बाज़ औक़ात हमें जिनसे शिकायत हो जाती है वो हमसे भी बड़े दुख से गुजर रहे होते हैं। यूँ भी सोचना चाहिए। उन्होंने उसके चेहरे पर एक गहरी और हक़दार नज़र डालकर गहरा कश लगाया। तो उन्हें शेयर करना चाहिए ना? वो नज़र झुकाए झुकाए रसानियत से बोली, नहीं, मेरा असूल ज़रा मुख्तलिफ है। खुशियाँ शेयर करने के लिए और दुख सहने के लिए होते हैं, यानी जिसका दुख है वो खुद सहेगा। बड़ा ज़र्फ का ढंढोरा है ये, उसने तंज से कहा। उसकी बात कट गई। कुछ ऐसे ही महरम राज होते हैं, ढंढोरे गैरों के सामने होते हैं। उसने कनखियों से देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और कश लगाया। माहिन की तमाम हंसियात चौकस हो गईं। खफकी और बहस में वो जैसे इस नए नए नौखेज से ताल्लुक़ को भूल गई, गोया उन्हीं के माहौल में पहुंची हुई थी। एकदम जैसे सब कुछ भूल गया कि वो क्या बता रहे थे और वो खुद क्या कह रही थी। वो गोया हाथ मसलने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करे। यावर अली खान ने सिगरेट बाएं हाथ में पकड़कर दायां हाथ बढ़ाया और इसका छोटा सा खूबसूरत हाथ इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए थाम लिया। बताइए, 2 दिन हो गए हमारी शादी को और मुझे ये भी नहीं मालूम कि हाँ आपके हाथ इतने खूबसूरत हैं। इतना अचानक हमला था कि माहिन छटपटा कर रह गई, मगर हाथ उनकी गिरफ्त से आज़ाद ना करा सकी। जब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो रहा हो तो बदगुमान होने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि दूसरी तरफ क्या मुश्किल है, उसे कोई उलझन ना हो, उसकी तबीयत किसी वजह से नासाज ना हो। जो बदगुमान होने में जल्दी करते हैं वो अच्छे रफ़ीक कैसे हो सकते हैं? माहिन ने इनकी मुदल्लल किस्म की ज़ात के सामने आज पहली बार मुकम्मल तौर पर ख़ुद को बेबस महसूस किया। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसकी मेहंदी से रची हथेली से इतना पसीना फूट निकला कि यावर अली खान का हाथ भी नम हो चुका था। खान, मुश्किल विच असावी जान पै गई है, असा की करिए? सरस्वती बीच राहदारी में बारी को रोके हुए कह रही थी। उसके पास चाबी कहाँ से आई? बुनियादी सवाल बारी के जहन में फ़ौरन ही आया। चाबी तुम्हारे पास से उसके पास पहुंची कैसे? बारी की पेशानी शिकन आलूद थी। ए तो तुसी नू दस ओही दस उसी असा नहीं, साड़ी नींद मौत वर्गी होंदी है। सरस्वती हिंदकों में एतराफ़ जुर्म करते करते फिर रुक गई। तुम इतना लेट बता रही हो मुझे? उन्होंने मिन्नता कर रही सा पर वो नहीं मन्ने तो फिर मजबूरन तुसानू आख रही हैं। खान, बचा लियो वड्डे खान, तुसानू रब दा वास्ता है खान, बहुत चंगा जी है तुसां दा। दसो मैनू मैं की करसा? वो रो रही थी। खाने के वक्त दरवाज़ा कैसे खुलता है? बारी ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। वही खोल देने, वही बंद कर देने, हिक्की मंदेया सानू। वो फूट फूट कर रो रही थी। अब रोने का क्या मतलब? तुम जाओ, मैं इधर के काम निपटा कर पीछे जाऊंगा। तुम आराम से सो जाओ। अगर चाबी दे दी तो तुम्हें दे दूंगा। खैर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। जाओ तुम, जींदे रहो जी, रब लंबी उम्र दे। वो फ़कीराना अंदाज में दुआ देती आगे बढ़ गई और किचन की तरफ आ गया। मैदान कारज़ार में उतरने से पहले कुछ सोचना तो था। आखिर बगैर प्लानिंग के वो पीछे जा नहीं सकता था। किचन में इस वक्त अपनी मर्जी की चाय बनाते हुए अच्छा खासा गौर व खौस किया जा सकता था। वहाँ से पिछवाड़े की जानिब रोक टोक के और दूसरों की नज़रों में आए बगैर जाया जा सकता था। वो वहाँ दाखिल होते ही बेचारी अजली मसरूफ़ मामा बिल्ली से सामना हो गया। तुम भी नहीं सोई मामा? उसने पहली रुकावट पर सब्र का घूंट भरा। आज ज़रा देर तो होना ही थी खान, घर में नई दुल्हन आई है।
मामा पर अभी तक खुशी का दौरा पड़ा हुआ था। हाँ, वो गायब दिमाग से हाँ कर कर आगे बढ़ गया। चाय बनाओ खान? नहीं मामा, अब तुम जाकर सो जाओ, चाय मैं खुद बना लूँगा। वो इस तरह गोया हुआ जैसे वो मामा को बहुत जल्द वहाँ से गायब देखना चाहता हो। हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए, उसने लाड किए। पहली दफ़ा नहीं बनाऊँगा, बाद औक़ात जब तुम सो रही होती हो तो मैं बनाता ही हूँ। ये तुम्हारे आराम का वक्त है, तुम जाओ जाओ प्लीज़, कह रहा हूँ ना मैं। उसने कदरे हुक्मिया अंदाज इख्तियार किया और वो खामोशी से अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर निकल गई। बारी ने नज़रें दौड़ाकर साफ सुथरे और सिमटे हुए किचन का जायज़ा लिया। स्विच बोर्ड के साथ ही उसे इलेक्ट्रिक केटल नज़र आई। वो बड़ी तुंदही से चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया। इतना बुरा वक्त आ गया लोगों पर कि खुद काम कर रहे हैं। बारी ने ज़ोर से चाय का डब्बा बंद किया। या इलाही, क्या हो गया? यहाँ के लोगों को रात भर जागते रहते हैं। उसने रोशी की आवाज़ पर शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी झुंझलाहट महसूस की थी, मगर खामोश रहा। रोशी फ्रिज में तकरीबन पूरी ही घुस गई। कहा भी है मामा को कि मेरी दवाएं इधर उधर ना किया करें, मगर वो बुड़बुड़ा रही थी। दवाएं? क्या हुआ है इन्हें? बारी ने चौंक कर उसकी सिमत देखा। अब क्या हो गया है आपको? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। पहले क्या हुआ था? मैं असली बीमार हूँ। वो तड़क कर गोया हुई तो वो खामोश रहा। नींद नहीं आती मुझे, ट्रैंकुलाइज लेती हूँ। और कुछ? क्यों नहीं आती आपको नींद? किस चीज़ की कमी है आपके पास? वो संजीदगी से कहते हुए कप में दूध डाल रहा था। कोई अपनी नींद का दुश्मन नहीं होता। अगर किसी की नींद गायब होती है तो मुझे कोई और होता है, वो जले भुने अंदाज में कह रही थी। क्या लेती हैं आप? उसे जैसे ये जानकर दिली रंज हुआ कि वो मस्कन अद्वियात इस्तेमाल करने लगी है। उसने ख्वाब आवर गोलियों के नाम गिनवा दिए। कब बारी के हाथ में लर्ज कर रह गया। उम्र देखी है आपने अपनी? उसने दुख से इसकी सिमत देखा। मैंने तो देखी है, तुमने नहीं देखी। उसने गिलास में पानी डाला और एक गोली मुंह में रखी और गटागट पी गई। बारी लाजवाब सा होकर कुर्सी पर बैठ गया और हल्के फुल्के सिप लेने लगा। एक मशवरा है आपके लिए, अगर आप माइंड ना करें। उसने जाती हुई रोशी को मुखातिब किया। जी फरमाइए। वो दरवाजे पर रुक गई। आप हफ्ते में एक मरतबा किसी अस्पताल का चक्कर लगा लिया करें। उसे नींद आने लगती है क्या? वो तमस्सखुराना अंदाज में गोया हुई। शायद आने लगे। वहाँ आप ऐसे वार्ड्स का दौरा किया करें जहाँ सीरियस किस्म के मरीज़ होते हैं, जिनकी तकलीफ़ देखने वालों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जो ऐसे अमराज में मुब्तला होते हैं कि जीते हैं न मरते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप तो मराज याफ्ता तबके में ही नहीं, इंसानों में भी बेइंतहा नेमत याफ्ता हैं। फिर आपको एहसास तशक्कुर होगा, आपकी तबीयत में ठहराव और सुकून आ जाएगा। खुद ब खुद नींद से आंखें बंद होने लगेंगी। उसने बात ख़त्म करके इसकी तरफ देखने के बजाय चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। बस? उसने तंजन कहा। बस। उसने भी वही अंदाज इख्तियार किया। नादान दोस्त, सारे दुख एक तरफ, दिल का दुख एक तरफ। वो इतना कहकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बारी ने एक गहरा सांस लिया। आखिर इंसान की मत इतनी क्यों मारी जाती है? बाहर सब दोस्त ही दोस्त होते हैं, इंसान अपना दुश्मन खुद बन जाता है। न जाने क्यों यूँ महसूस हुआ जैसे कहीं से आँच आ रही हो और दिल मोम की तरह पिघलने लगा हो। उसने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करके इस कैफे से पीछा छुड़ाया और कप सिंक में रख कर वहीं खड़े खड़े सोचने लगा। एक नए मार्के से दो चार होने का वक्त करीब था। घबरा रहे हो मिस्टर बारी? कोई इसके अंदर मुस्कुराने लगा। अरे नहीं घबराना, जब सबसे बड़ा नुकसान हो चुका, अब किसी शय के खो जाने का खौफ नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा बेफिक्र वो है जो अपनी मता गंवा कर रो कर फारिग हो चुका हो। वो मुस्कुराते हुए पुरसकून अंदाज में बाहर आया। पूरी हवेली पर सन्नाटे और तारीकी का राज था। कुत्तों के भौंकने, गधों के चौंक का रेंगने और घोड़ों के हिनहिनाने से अजीब सा महसूस हो रहा था। वो बहुत मोहतात अंदाज में तवील व अरीज अहाता पार करके हवेली के अकबी हिस्से में आया। मुद्दतें गुजरी, वो यहाँ से वहाँ आता जाता था। आज कदम पर कोई जंजीर सी झनक रही थी। वो राहदारी में पहुंचा और लाइटें रोशन कर दी। फौरन सबसे आखिरी में बनी एक कोठरी में जो गालिबन स्टोर की नीयत से बनाई गई होगी की तरफ देखा। बाहर आती रोशनी बता रही थी कि कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ है।
वो चंद सानिये अपनी जगह खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर फैसला कुन अंदाज में आगे बढ़ा। एक दरमियानी बंद कमरे में बड़ा सा ताला झूल रहा था। उसने जेब से चाबियां निकालकर देखने शुरू की। बिला आखिर एक चाबी लग गई और ताला खुल गया। उसने ताला निकालकर बगली जेब में डाला और कोठरी की सिमत देखा। वहाँ देखने को कुछ ना था। वो चौंका, फिर उलझकर कुछ सोचने लगा। फिर एकदम ध्यान दफ्तरी के कमरे की तरफ गया। उसने सर उठाकर दफ्तरी के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खुसर फुसर की आवाज़ें आईं और फिर दरवाज़ा खुल गया। फिरोजी कुर्ते शलवार में मलबूस झूमर बगैर दुपट्टे के इसके सामने खड़ी हैरत से पलकें झपका रही थी। इतने खुश नसीब हैं हम, यकीन नहीं आ रहा। वो शरारत से मुस्कुराई। रास्ता दीजिए मुझे, मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसने दरवाजे के दरमियान में खड़ी झूमर से बड़े खुरदरे लहजे में कहा। हमें पता होता इस घड़ी तुम आओगे तो कुछ इस तरह इंतज़ाम करते कि तुम्हारा जुमला सुनकर खुशी से बेहोश हो जाते, मगर अफसोस फ़िलहाल हम तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसा करो, थोड़ी देर बाद आना। आप औरत हैं और मैं मर्द, मगर आपके हिस्से की हया भी मुझे करना पड़ती है। हटिए एक तरफ। उसका मर्दाना जलाल भी गज़ब में था, मगर झूमर ढिठाई से अपनी जगह अड़ी रही। प्लीज़ मुझे रास्ता दीजिए अंदर आने का। वो जिद हो रहा था। तुम तो हो ही अंदर, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो बदस्तूर शौक़ी से बोली। तो आप नहीं हटेंगी? उसने बरहमी से झूमर का चेहरा देखा। नहीं, क्या कर लोगे? वो खिलखिलाई। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दें। उसने जैसे बहुत रिसानत का मुजाहरा किया। मैं भी जनाब से कह चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाइएगा। वो मुस्कुराई। बारी ने कई गहरे गहरे सांस लिए, फिर एक झटके से झूमर का बाजू पकड़कर आगे की तरफ खींचा और बाएं तरफ देखा। ये देखे बगैर कि उसका क्या हशर हुआ, वो कमरे में दाखिल हो गया। वो फसाद की जड़ जंजीर समेत खड़ी हुई गालिबन दोनों की तकरार सुन रही थी। बारी को अंदर आते देखकर उसने नज़रें झुका लीं। बारी ने उस पर नज़र डालना अभी ज़रूर नहीं समझा। अपने ठिकाने पर चलो। जाना उससे अपने ठिकाने पर ही है। ज़रा सी देर आज़ाद बैठने दो। तुम्हारी जेब से क्या जाता है? झूमर अपनी कोहनी सहलाती हुई अंदर आ गई। आप बड़े खान के ज़ाती मामलात में मुदाखलत ना करें तो आपके हक़ में बेहतर है। आगे बढ़ो। जो मेरा जी चाहेगा मैं करूँगी। देखो, मैंने इसका सर धुलाया है, बाल बनाए हैं, कर लो जो करना है। जो मेरा खाना आता है वो भी मैं इसे खिलाती हूँ, बल्कि हम दोनों साथ ही खाती हैं। हैवानों की बस्ती में एक ये इंसान है और एक मैं। जाओ, जाकर कह दो उनसे। झूमर बिस्तर पर बैठकर अपने दुपट्टे से कोहनी से खून साफ करने लगी। शायद चोट ज़्यादा लग गई थी। बारी उसकी तरफ मुतवज्जा था। खून देखकर अजीब सा एहसास जुर्म हुआ, मगर ज़ाहिरन नज़र बचा गया। चलो, उसने औरत को आगे चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ी। जंजीरें झटक उठी, छनक उठी। कहाँ जा रही हो? मेरी मौजूदगी में किसी का कहना मानने की ज़रूरत नहीं। झूमर ने फर्श पर पड़ी एक जंजीर थाम कर उसको कहा। आप मसला ना बने, हमें मसले हल करने भी आते हैं, छोड़ें आप। उसने भी जंजीर थाम कर झटका देते हुए कहा। हमें भी मसले पैदा करने आते हैं। अभी यहाँ के और भी बंद कमरे खोलूँगी, बता देना। वो बरहमी से गोया हुई। भाभी, बंदी को झूमर कहते हैं। झूमर ने उसकी बात काट दी और खिलखिला पड़ी। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मुझ में इतनी क़ुव्वत है कि आपको उसके साथ इसी कोठरी में बंद कर दूँ। उसने बहुत ज़ब्त से कहा। तो फिर अपने कमरे में बंद करो। जब बंद करना ही है तो हम तुम एक कमरे में बंद हो। वो गुनगुनाई। शट अप, मत गिराइए खुद को इतना। किस खाते में घटा रही हैं खुद को इतना? वो बरहम हुआ। खान यावर अली खान ने दूसरी शादी कर ली है। औरत ने इसकी बहस से बिल्कुल लाताल्लुक़े का इजहार करते हुए खोए खोए अंदाज में सवाल किया। तुम्हें क्या, अगर वो तीसरी भी कर लें? बारी ने सुलग कर जवाब दिया। सरस्वती बता रही थी, बड़ी कम उम्र दुल्हन है। कहाँ से आई है बदनसीब? वो तो ये भी बता रही थी कि रोशी की सगी खाला है, मगर मुझे यकीन नहीं आया। ऐसा तो क़यामत तक नहीं हो सकता। वो खोए खोए अंदाज में बोली। तुम्हें ख्वामखा हलकान होने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे अपने मामलात हैं, आगे बढ़ो। उसने फिर जंजीर को झटका दिया। औरत चल पड़ी, मगर चंद कदम पर फिर रुक गई। झूमर के हाथों में उसके दाएं पाँव की जंजीर थी, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। बारी ने झल्लाकर एक फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। झूमर की तरफ बढ़ा।
اس کے ہاتھ سے زنجیر جھٹکا دے کر حاصل کی اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ آرام سے بیٹھیے، کرتا ہوں ابھی آپ کا بھی انتظام۔ تم کیا منہ دیکھ رہی ہو، چلو۔ اس نے اپنی آواز میں جی بھر کے سختی سموئی۔ عورت چل پڑی۔ باری نے اسے کوٹھی میں پہنچایا اور باہر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تالا چابی نہیں چاہیے کیا؟ جھومر کی شرارت بھری آواز قریب ہی سے سنائی دی۔ باری نے اس کی سمت دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ عورت بہت پرسکون انداز میں اپنی کوٹھی میں چلی گئی تھی۔ یہ تو زندگی بھر کے لیے طے تھا، ہمیشہ کا ذہنی سمجھوتا، ابدی بات۔ باری نے دروازہ بند کیا، پھر بغلی جیب سے تالا نکالا اور لگا دیا۔ جھومر اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ اپنے پاس رکھی اپنا تالا اور چابی۔ اس نے چابیاں واپس بغلی جیب میں ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جھومر قدرے دمبا خود سی راہداری کے موڑ تک اسے گھورتی رہی۔